Hello dear students, welcome back to the chemistry class. In the last class we have discussed about significant figures and rules to determine the significant figure. Okay, so in today's class we'll discuss about some of the numericals on significant figures. So before going to that, as when we're solving the problems, often we get some more number of digits as we require. So to retain the significant figures, to retain the required number of digits, we need to round up of a number. So for rounding of the numbers, we have some rules. So let's first discuss about rounding of the numbers and then a few problems related to significant figure. Okay, let's start. First point we'll discuss about a rounding of the numbers. Rounding of the numbers. So how to round off a number? In order to get the required number of significant figure, the desired number of significant figure, we need to round off. For example में देखिए, what is the decimal equivalent of 2 by 3? Decimal equivalent of 2 by 3. 2 by 3 कितना होते हैं? और 1 by 3. 1 by 3 का वैल्यूज कितना है? 1 by 3 is equals to 0.333333 ऐसे आएगा आंसर आपको, राइट? नंबर ऑफ डिजिट्स ज्यादा है. How many significant figures are there in that number? 0.333333. 6 decimal places. 6 significant figures है. हमको कितना चाहिए उसमें? 1, 2, 3, 4. Desired number क्या है आपका? Suppose if you want only 4 significant figures, then how to write the answer? How to express this results in 4 significant figures? I want to round up these two numbers. मुझे वो दो नंबर नहीं चाहिए, वो दो डिजिट्स को कट करना है, तो कैसा करना? उसके लिए we need to round off the numbers. So in rounding of the numbers we have some rules. वो rules कौन सा है? Let's come to that point. Rules to rounding of the numbers. Number 1, first one, if the digit coming after the desired number of significant figure happen to be more than 5, then the preceding one is increased by 1. ये first rule है आपका. क्या है rule? If the number or if the digit coming after the desired number of significant figure, it happened to be more than 5, then preceding one is increased by 1. In simple way में अगर बोलना है, जो last number हमें round up करना है, अगर वो number 5 से भी ज्यादा रहा तो उससे पहले जो नंबर है उसको +1 करना पड़ेगा. सिंपल. इफ द लास्ट नंबर इज ग्रेटर देन 5 दैट वी वांट टू राउंड ऑफ, देन उससे पहले का नंबर जो है प्रीसीडिंग वन इज इंक्रीज्ड बाय 1. ये आपका फर्स्ट रूल है. प्लीज नोट दैट फर्स्ट रूल. फर्स्ट रूल क्या है? इफ द डिजिट coming after the desired number of significant figure, in short I have written SF. If the digit coming after the desired number of significant figure happens to be greater than 5, preceding digit or preceding number is increased by 1. ये बहुत लंबा हुआ है आपको शायद. सिंपल वे में भी आप लिख सकते हैं. कैसा? If the last digit is greater than 5, then preceding number is increased by 1. वो देखिए, for example,
If we have some number, you can consider any values x point, y, z, etc. x point a, b, c, d, e, f, etc. कौन से भी एक नंबर सेलेक्ट कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, इफ आई एम सेलेक्टिंग 11.78921346 एक्सेट्रा, ऐसा एक नंबर लास्ट नंबर कंसिडर किया. अगर मुझे लास्ट डिजिट राउंड अप करना है, बहुत बड़ा हो गया तो शॉर्ट कीजिए, एक सिंपल प्रॉब्लम्स कंसिडर करेंगे. 11.78 एक सिंपल सा छोटा नंबर कंसिडर किया 11.78. इफ आई वांट ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पर 4 सिग्निफिकेंट फिगर है. लुक एट द लास्ट नंबर. दिस डिजिट आई वांट टू राउंड ऑफ, सो इट इज ग्रेटर देन 5. अगर लास्ट डिजिट जो हमने रिमूव कर रहा है ये वैल्यूज ग्रेटर देन 5 रहा तो द प्रीसीडिंग नंबर, ये नंबर प्रीसीडिंग 1, इसको +1 करना पड़ेगा आपको. देयरफॉर द रिजल्टिंग आंसर इज 11.8 इज द आंसर. 11. समझ में आ गया? ओके. फॉर एग्जांपल 5.238. If the last number is greater than 5, then the preceding one is increased by 5.2. यहां पर 3 था, the preceding one is increased by +1 किया तो 4. ऐसा करना पड़ेगा आपको. ये फर्स्ट रूल. सेकेंड रूल क्या है? देखिए यहां पर अब ये ग्रेटर देन 5 है तो +1 किया. अगर ये लास्ट डिजिट लेस देन 5 है, देन द प्रीसीडिंग वन इज रिमाइंस अनचेंज्ड. कुछ भी चेंज नहीं करना चाहिए आपको. लास्ट डिजिट ग्रेटर देन 5 रहा तो +1 करना पड़ेगा. इफ इट इज लेस देन 5, नो नीड टू चेंज, कीप एज इट इज. तो ये आपका सेकेंड रूल. एग्जैक्टली सेम है. इफ द डिजिट कमिंग आफ्टर द डिजायर्ड नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर हैपन टू बी लेस देन 5, ये ग्रेटर देन 5 की जगह ये जो है यहां पर ग्रेटर देन 5, इसकी जगह इफ इट इज लेस देन 5 रहा तो देन प्रीसीडिंग डिजिट यहां पर इंक्रीज बाय 1 है, इट रिमाइंस कांस्टेंट. इंक्रीज, ये इंक्रीज डिक्रीज कुछ भी नहीं करना चाहिए आपको, रिमाइंस कांस्टेंट. तो सेकंड क्या है? इफ द लास्ट डिजिट which is to be round off is less than 5, then preceding one or preceding number remains as it is. Preceding number remains unchanged as it is. Remains unchanged. ऐसे ही लिख सकते हैं. If the last digit which is to be round up is greater than 5, then preceding number is increased by 1. If it is less than 5, preceding one remains unchanged. एक एग्जांपल देखिए, यहाँ पर कौन सा एग्जांपल कंसीडर किया भाई? 5.23. ये 8 की जगह मैंने 4 लिया है यहाँ पर. 4. This is 4. Then the last digit I want to round off. I wish to round off this digit. Then the preceding one remains as it is, no change. Therefore, the answer is 5.23. Its answer is 5.23. 7.892 है, last digit less than 5 है, तो 7.89 is the answer. 7.89 क्योंकि last digit less than 5. Third one क्या है? If it is exactly 5 रहा तो यहाँ पर 2 केसेस आएगा आपको. If the digit coming after the desired number of significant figure, if it happen to exactly 5, in that case, if the last digit, same like if the last digit is exactly 5, if the last digit is exactly 5, then the preceding number exactly 5, then the preceding number is increased by 1
increased by 1 only if the number is odd, or else remains unchanged. तो देखिए यहाँ पर unchanged, इसका मीनिंग क्या है? मैं यहाँ पर दो एग्जांपल कंसीडर करता हूं अभी। 5.635, 5.645, दो एग्जांपल कंसीडर करें यहाँ पर। The last digit what I want to round up is exactly 5. The digit which I want to round up is exactly 5 रहा तो the preceding number means उससे पहले जो नंबर है, the preceding number is increased by 1 if it is odd. यहां पर देखिए ये odd number है 3. So in this case 5.64 we can write because the preceding number is increased by 1 if it is odd. लेकिन यहां पर क्या है? even number है, ये even number रहा तो it remains as it is. तो देखिए यहां पर भी आंसर मैंने 5.4 ही लिखा, remains as it is. लेकिन यहां पर क्या किया मैंने? +1 किया, लेकिन यहां पर as it is किया। सिंपल है, 3 रूल है। जो आपका लास्ट डिजिट 5 से भी ज्यादा है तो वो आप रिमूव कर रहे हैं, देन लास्ट उससे नेक्स्ट सेकंड लास्ट नंबर जो है उसको +1 करना पड़ेगा। इफ द लास्ट डिजिट इज ग्रेटर देन 5, increase the preceding number by 1. If the last digit is less than 5, no need to change, keep as it is. If the last digit is exactly 5, then the preceding number is increased by 1 if it is odd, or else remains unchanged if it is even. तो ये हुआ आपका राउंडिंग ऑफ द नंबर्स। अब एक एग्जांपल्स लिखूंगा मैं यहाँ पर, जनरल एग्जांपल कंसीडर करूंगा। A round ऑफ द नंबर अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर। मुझे ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए, लेकिन ये नंबर में कितना दिया? फॉर एग्जांपल देखिए 6.278535429 समथिंग ऐसा कुछ नंबर है, नंबर दिया मैं। मुझे 3 सिग्निफिकेंट फिगर चाहिए। आई रिक्वायर्ड ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर, लेकिन यहां पर कितना है? और 3 + 3 + 1 तो 7 डिजिट और एक्स्ट्रा दिया है। अगर आपको प्रैक्टिस हुआ है तो डायरेक्टली बोल सकते हैं, क्योंकि 3 चाहिए, 4th डिजिट 8 है, 8 मींस इट इज ग्रेटर देन 5 है, तो डायरेक्टली मैं यहां पर 6.28 लिख सकता हूं यहां पर डायरेक्टली। लेकिन आपको क्या करना है? 1 by 1 इंक्रीज करना है। तो लास्ट डिजिट से देखेंगे 9 है, प्रीसीडिंग 1 इज इंक्रीज बाय 1, तो 3 हो गया। 3 is less than 5, remains as it is. 4 is less than 5, remains as it is. Again last digit 5 है, exactly 5 है, preceding one is increased by 4, तो ये 3 से 4 हो गया। It is less than 5, remains as it is. Exactly 5 है, then the preceding one is increased by 9. Greater than 5 है, last digit is increased by 8. अगर आपको प्रैक्टिस हुआ तो डायरेक्टली लिख सकते, तो ये हुआ 3 डिजिट्स को लेके आए हम, इतना लार्ज नंबर था उसको 3 डिजिट को लेके आए। तो ये हुआ राउंडिंग ऑफ द नंबर। ये वैल्यूज आपको, ये रूल्स जो है ये आपको याद रखना पड़ेगा, बिकॉज बेस्ड अपॉन दिस वी आर गोइंग टू राउंड ऑफ द नंबर्स। चलो ठीक है, अब हम जाएंगे सम कैलकुलेशंस व्हिच इन्वॉल्व्स साइंटिफिक नोटेशंस एंड सिग्निफिकेंट फिगर्स दोनों। पर्टिकुलरली हमको सिग्निफिकेंट फिगर का कैलकुलेशंस करने का है, उसमें साइंटिफिक नोटेशन भी आपको आ सकता है। चलो देखेंगे कौन सा है वो। नाउ कैलकुलेशंस इन्वॉल्विंग सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो कैलकुलेशंस क्या है वहां पर? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। रूल्स में शायद पढ़ाया होगा आपको। ड्यूरिंग द एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एक रूल है, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में एक रूल है। तो देखिए क्या है? एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन। जस्ट रिकॉल दैट। ड्यूरिंग एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन,
मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन। फर्स्ट केस में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन के केस में क्या करना है आपको, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस देखना है, लीस्ट नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस। फॉर एग्जांपल 11.23, 2.3568, जो भी आप आंसर यहां पर करते हो तो आंसर क्या हुआ यहां पर आपका 868513, 13.6 ये आंसर हुआ आपका। लेकिन यहां पर देखिए गिवन नंबर में जो है यहां पर 2 डेसिमल प्लेसेस आर देयर, इट कंटेनिंग 2 डिजिट्स, दिस कंटेनिंग 2 डेसिमल प्लेसेस whereas this containing 4, लीस्ट कौन सा है 2, आंसर में भी 2 डिजिट रहना चाहिए, लेकिन यहां पर 4 है तो ये दोनों को राउंड ऑफ करना पड़ेगा मुझे। ये 6 है, ग्रेटर देन 5 है तो राउंड ऑफ किया तो आंसर कितना हुआ आपका 13.5, ग्रेटर देन 5, प्रीसीडिंग वन इज इंक्रीज बाय 5, तो ये हुआ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन में। टेक एन एग्जांपल 2.36 इंटू 3 या 4 करेंगे, 2 इंटू 2 सिंपल 2 लेंगे, 2 6 12, 2 1 2 3 6 plus 1 7, 2 2 4, so 4.72 is your answer, 4.72। आंसर में यहां पर क्या है ओनली 1, लेकिन यहां पर देखिए ऐसा अगर 2 3 4 5 यहां पर 3 डिजिट है, यहां पर 1 डिजिट है, ऐसा 1 डिजिट सिंगल नॉन जीरो डिजिट रहा तो स्पेशल पॉइंट है, सिंगल नॉन जीरो डिजिट रहा तो इट इज कंसिडर्ड एज एग्जैक्ट नंबर। जब एग्जैक्ट नंबर है उसके अंदर इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहते हैं तो लीस्ट इज ओनली 3, लीस्ट नंबर इज ओनली 3, सो दिस इज द राइट आंसर। अगर आपको राउंड ऑफ करना है तो आप 5 सेलेक्ट करते हैं इसको, क्योंकि 4.7 इज नियरली इक्वल्स टू 5 सेलेक्ट करते हैं। बट इफ इन केस ऑफ एग्जैक्ट नंबर इट्स एग्जैक्ट नंबर रहा तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर रहते हैं, इनफाइनाइट नंबर, तो ओनली 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसके केस में, 3 सिग्निफिकेंट इज लीस्ट, फाइनल आंसर इज 4.72 इज एक्यूरेट। लेकिन क्वेश्चन कैसा पूछते हैं आपको एग्जाम में, ये कैलकुलेशंस हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया होगा। तो नाउ द क्वेश्चन इज प्रेडिक्ट आर हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग कैलकुलेशंस, ऐसा क्वेश्चन पूछते हैं। सम क्वेश्चंस में देखिए कैलकुलेशंस करने का जरूरी नहीं आपको, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फाइनल आंसर, फाइनल आंसर में सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। फॉर एग्जांपल मैं आप कौन से भी जनरल कैलकुलेशंस ले रहे हो, देखिए 2.87572 इंटू समथिंग 0.2857 इंटू 3.11 इंटू 298.17 डिवाइडेड बाय 0.52। ऑब्जेक्टिव में कैलकुलेशंस करो तो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन दिस क्वेश्चन, सिग्निफिकेंट फिगर यहां पर कितना है, हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर। आंसर से अच्छा आपको ये फाइंड आउट करना पड़ेगा सिग्निफिकेंट फिगर कितना है। ये मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन है, मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन में आपको सिग्निफिकेंट फिगर चेक करना पड़ेगा, लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर में आंसर एक्सप्रेस करना है। तो यहां पर कितना सिग्निफिकेंट फिगर है 1 2 3 4 सिग्निफिकेंट फिगर है, तो ये केस पे 4 सिग्निफिकेंट फिगर। यहां पर कितना है 3 सिग्निफिकेंट फिगर, यहां पर कितना है 5 सिग्निफिकेंट, लेकिन यहां पर 2। देखिए लीस्ट नंबर कौन सा है 2, द आंसर कंटेन्स ओनली 2 significant figures are there in this case, 2 significant figure है। और एक देखिए फॉर एग्जांपल नेक्स्ट वन मोर 0.0892 प्लस 11.32567 प्लस 3.21, ऐसा कुछ मैंने क्वेश्चन दिया। हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर इन द फॉलोइंग आंसर, मैं डायरेक्टली बोल दूंगा यहाँ पर 3 सिग्निफिकेंट फिगर है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर। 3 सिग्निफिकेंट फिगर कैसा आएगा 3 या 4, 3 सिग्निफिकेंट फिगर या सॉरी 4 सिग्निफिकेंट फिगर आया होगा, वो कैसा फाइंड आउट करते हैं। देखिए यहाँ पर 11 प्लस 3 14, डेसिमल से पहले 14 है, डेसिमल पॉइंट के बाद में कितना डिजिट रहना चाहिए, डेसिमल पॉइंट के बाद 4 डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद 5 डिजिट है, डेसिमल पॉइंट के बाद 2 डिजिट है।
सो वट एवर द आंसर में डेसिमल पॉइंट के बाद में 2 डिजिट रहना चाहिए. सो डेसिमल से पहले क्या है 3 प्लस 11 प्लस 0 तो 14. तो इधर 14 पॉइंट समथिंग जितना भी 2 डिजिट है. टोटल कितना सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर, 4 सिग्निफिकेंट फिगर. अब एक नंबर देखो, जनरल नंबर, क्योंकि सिंपल कैलकुलेशंस रहते हैं, बहुत इजी है, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम नहीं. एनसीईआरटी में कुछ क्वेश्चंस दिया है. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर्स. फॉर एग्जांपल 9.2643. एक्सप्रेस द फॉलोइंग इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर. 4 सिग्निफिकेंट फिगर में लिखिए इसको. कितना होता 4 सिग्निफिकेंट फिगर? 5 feet 9 inch. इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कीजिए. सेंटीमीटर हमको कितना चाहिए? 4 सिग्निफिकेंट चाहिए. एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर. डेसिमल इक्विवेलेंट्स ऑफ 2/3. 2/3 को कन्वर्ट कीजिए. कितना आएगा देखिए यहाँ पर. इन ओनली 4 सिग्निफिकेंट फिगर में चाहिए. तो यहाँ पर कितना होगा? 1 2 3 4 5 है. तो लास्ट डिजिट प्रोडक्ट कीजिए. लास्ट डिजिट 4000 और 40,000. 4 डिजिट चाहिए. तो एक डिजिट, लास्ट डिजिट इज 3 लेस देन 5. therefore आंसर इज 9.264. ये आंसर हो गया. यहाँ पर 5 feet 9 inch. 5 feet 9 inch. तो ये थोड़ा कन्वर्शन फैक्टर का है. नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करेंगे डायमेंशनल एनालिसिस. और डायमेंशनल एनालिसिस का फैक्टर क्या है? 1 feet बोले तो कितना? 12 इंच रहते. सो 12 5 60. 60 प्लस 9 69 इंच हो गया. 69 इंचेस आ गया. तो एक 1 इंच इज नथिंग बट हाउ मेनी सेंटीमीटर? 2.1 इंच इज नथिंग बट 2.54. 2.54 मल्टीप्लाई किया तो कितना होते हैं? 2.54 मल्टीप्लाई तो अप्रोक्सीमेटली 140 नियर, क्योंकि 70 इंटू 2 कितना हुआ? 140. तो 140 प्लस समथिंग आ जाएगा आपको. 140 कैलकुलेशन में शायद किया होगा इसका भी. एक significant figure rounding of the numbers. Yes, it is nearly equals to, okay, this value is 175. 2.54 है ना. 69 inch into 2.54. In this case the final answer is 175.26 centimeter. 175.26 centimeter. लेकिन यहाँ पर कितना है? 5 डिजिट है. The last digit is greater than 5. Greater than 5 हो तो 175.3. 4 डिजिट हो गया. 2/3 बोले तो कितना आता है? 20/3. 20/3 means 3 6 so 0.66666 0.6666666 ऐसा आंसर आएगा. तो लास्ट 4 चाहिए मुझे. तो लास्ट डिजिट राउंड अप किया तो नेक्स्ट इज 7. 0.667. 40,000 है. 4 डिजिट चाहिए. तो क्या करते हैं आप? 4 डिजिट बोले तो साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ठीक है. 4 डिजिट हो गया इंटू 10 टू द पावर 1 2 3 4. 4 डिजिट पे गया था मैं यहाँ पर इंटू 4. तो हो गया ये 40,000. 4 सिग्निफिकेंट फिगर बिकॉज ऑल द नंबर्स आर सिग्निफिकेंट इफ इट इज एक्सप्रेस्ड इन साइंटिफिक नोटेशन. तो इस टाइप का क्वेश्चन आपको पूछेगा. साइंटिफिक नोटेशंस, सिग्निफिकेंट फिगर्स, अर्थमेटिक इन्वॉल्विंग दीज टू along with the rounding of the numbers. इसके ऊपर एनसीईआरटी में जो क्वेश्चन पूछा है पूरा सॉल्व कीजिए. आपका रेगुलर नोटबुक में आंसर्स लिखिए उसका. इन द नेक्स्ट क्लास we'll move to the next concept, laws of chemical combination.